Okay, now here, first we did the resolving power of a microscope. So we found that the part difference is equal to 2a sine alpha. This was the part difference, 2a sine alpha. Then this 2a sine alpha, we have taken non-luminous sources. If these are the non-luminous sources, then 2a sine alpha is equal to lambda n. या फिर हमने यहाँ पे सिंबल के लिए लैम्बडा डैश लिया था, ठीक है. दैट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज अ लिक्विड. ओके, नाउ 2a sin alpha is equal to, but lambda dash, what is refractive index equal to? Wavelength of light in air upon wavelength of light in medium. So what is wavelength of light in medium? ये नीचे आएगा, यानी क्या आएगा? Lambda upon n. So what is A is equal to lambda upon 2n sin alpha. ये terms नीचे आ गया. Then n sin alpha is called as numerical aperture. So this is called as limit of resolution, and resolving power is a reciprocal of limit of resolution. यानी क्या आएगा? 2 numerical aperture upon lambda. This was the first thing that we did. Then for luminous sources, so 2a sin alpha is equal to 1.22 lambda of that liquid, lambda dash. ठीक है. Once again similar relation है. सिर्फ फर्क क्या है? नॉन लुमिनस में 1.22 नहीं आता है, लुमिनस वाले में 1.22 आता है. So what is A equal to 1.22 upon 2 sin alpha into lambda dash के बदले आएगा lambda upon n. ठीक है. Instead of lambda dash it will be lambda upon n. Once again n sin alpha will be said to be, this became 0.61 lambda n sin alpha यानी numerical aperture. This is A. So resolving power is a reciprocal, that is numerical aperture upon 0.61 lambda. So this is what we have done in our previous. Then a straight line, mark I, then draw a line at an angle which is at theta. Mark here I dash. ये A I dash join करना है, B I dash join करना है. That B I dash A I dash becomes a path difference. Okay, you can draw parallel ray and inclined ray. So these are all incident rays coming from two different sources. एक सोर्स O dash इधर है, एक सोर्स O इधर है. तो एक सोर्स O से रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो यहाँ पे गिर रहा है, और दूसरा सोर्स O dash इधर है जिसका रे ऑफ लाइट वहां पे गिर रहा है. ठीक है. So here this distance is D. This angle over here is theta. Okay. And path difference is B I dash minus A I dash. Everyone can see that path difference is B I dash minus A I dash. Okay. Now that path difference is also calculated to be I dash. So ये दिए distance between the image and the lens, इसका और ये एंगल का क्या रिलेशन है? इस एंगल का इसके साथ और इसके साथ क्या रिलेशन आता है? tan theta का. So what is tan theta equal to? What is tan theta? I dash upon D. So what does I dash become? D into theta. अगर ये अप्रोक्सीमेटली थीटा लेते हैं तो ठीक है. ये रीजन कुछ देना नहीं है तुमको, सिर्फ तुमको याद रखने के लिए. ये I dash क्या डिस्टेंस है? I dash is D theta. So first we start it like this. The path difference is equal to D into theta. We call it as approximately equal to D into theta. Okay. So path difference is D into theta. Second, this D theta in the telescope
this part difference d theta, we will take it as 1.22 lambda. ना फर्क क्या है, माइक्रोस्कोप में दो केस था, एक नॉन लुमिनस जिसमें 1.22 नहीं आ रहा था, एक लुमिनस जिसमें 1.22 आ रहा था। इधर क्या किया है, हमने पार्ट डिफरेंस लैम्बडा डैश लिया था, पार्ट डिफरेंस 1.22 लैम्बडा डैश लिया। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस डी थीटा, पार्ट डिफरेंस हमने 1.22 लैम्बडा लिया है। मतलब कौन सा वाला लिया है, कैन यू टेल मी कौन सा वाला लिया है? व्हाट आर वी व्यूइंग? Luminous. मींस व्हाट वी आर व्यूइंग आर द स्टार्स। थ्रू दिस टेलीस्कोप व्हाट वी आर व्यूइंग आर द स्टार्स। ओके, हम लोग स्टार्स को व्यू कर रहे हैं व्हिच देमसेल्फ आर द सोर्सेस ऑफ लाइट, सो दोज आर द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, तुम नोटिस करना ये लैम्बडा डैश था पर यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा लिया है। ऐसा क्यों लिया है लैम्बडा? व्हाई दिस वाज लैम्बडा डैश? फर्स्ट टेल मी। Medium was माइक्रोस्कोप liquid. में Was lambda into n. बट मीडियम क्यों लिया था? माइक्रोस्कोप के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो लैम्बडा डैश क्यों आता है। Glycerin was बिकॉज ऑफ दी ऑयल, यस द ऑयल यूज, लेंस के बाजू में भी ऑयल होता है, वी ऑल्सो यूज ग्लिसरीन एंड एवरीथिंग, सो लैम्बडा डैश विल बी देयर इन पिक्चर। बट टेलीस्कोप में ऑयल वगैरह नहीं, लेंस के इधर कोई ऑयल नहीं रहता, लेंस के बाजू में कोई ऑयल नहीं रहता, दैट्स द रीजन लैम्बडा है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर नाउ। सो व्हाट डज थीटा बिकम? 1.22 lambda upon capital T. ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे लास्ट टाइम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ए था, वैसे इस केस में थीटा है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ थीटा, यानी क्या आएगा? d upon 1.22 lambda. That's your formula. Okay, you have to look and tell me this. For better resolution, माइक्रोस्कोप में for better resolving power, lambda का value should be small. Same way, for better resolving power in telescope, lambda का value should be small. Second, the distance or the diameter has to be more. ठीक है, एक मिनट। They instead of using light, instead of using mirrors and everything, they use radio telescope. Now, what is a radio telescope is? जैसे लाइट वेव्स है वैसे रेडियो भी वेव्स ही है। लाइट आर द वेव, सिमिलर वे रेडियो इज ऑल्सो अ वेव। अगर रेडियो वेव्स यूज करेंगे तो फिर तुमको एक मिरर का या लेंस का यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दैट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 183 पे, यू कैन सी दैट देयर आर मेनी सच एंटेनास केप्ट। ठीक है, सो दीज एंटेनास आर केप्ट far away from each other. So rather than using one lens or one mirror, we are keeping many antennas at far away distance. Okay, and these distances are like kilometers away. So काफी kilometers away these antennas are kept. So that antenna का जो area बनेगा ना, that will play the same role like this mirror or the lens. So instead of using lens or a mirror, हम लोग बहुत सारे एंटेनास रखते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइट रेज वी यूज रेडियो वेव्स. ओके, सो दिस इज हाउ द फर्दर रिसर्च ऑन ऑल दीज स्टार्स एंड एवरीथिंग इज डन. ओके, प्लीज टू रिमेंबर ये डी डिस्टेंस नहीं है, ये डी डायमीटर है, एंड ये रिलेशन एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, सो प्लीज लर्न दैट कि ये पार्ट डिफरेंस डी थीटा कैसे है वो तुमको लर्न करने का. ठीक है, बाकी सर डिस्कंटिन्यू. A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light, lambda is 589 Newton meter, that are 0.20 degree apart. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? N is equal to 1.33. Okay, now look at the 15th question.
A double slit arrangement produces interference pattern for sodium light. So for sodium light, the interference pattern is 589 Newton meter that are 0.2 degree apart. Theta, that is called as angular separation. Angular separation. ठीक है, हमने टेबल किया था, रिमेंबर? So please come to that table. पेज नंबर 179 पे एक टेबल किया था, चेक करो. वो डबल स्लिट वाला टेबल में चेक करो. टेल मी व्हाट इज एंगुलर पोजीशन. एंगुलर पोजीशन थीटा यानी एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या है? यस, व्हाट इज थीटा n इक्वल lambda टू upon small N d. lambda upon फॉर्मूला d. भी यस. तो ये सम उस फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, एंगुलर पोजीशन वाला. ठीक है, ओके. नाउ थीटा इज नोन. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज? तो मैं इसको थीटा 1 ले रहा हूँ और ये थीटा 2 है. व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज? मतलब एक फ्रिंज के बीच का एंगुलर डिस्टेंस. इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, ओके, तो मेरा लैम्बडा डैश चेंज हो जाएगा. हाँ, ये चेंज हो गया, पर ये मेरे को ढूंढना नहीं है. ये लैम्बडा डैश आ गया. एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ 1.33. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन 1.33. ओके, सो मुझे लैम्बडा मालूम है 589 न्यूटन मीटर. सभी का एंगुलर पोजीशन इज नोन थीटा 1. एंगुलर पोजीशन इज नोन. ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है. ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन हो गया. ठीक है, ऑफ द बैंड ओवर हियर, या फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन. फ्रिंज का एंगल सो फॉर्म, जैसे फ्रिंज विड्थ होता है वैसे एंगुलर पोजीशन है. नाउ द क्वेश्चन इज, तुम्हारा थीटा 2 का वैल्यू क्या रहेगा? So let's write the formula for theta. What is theta equal to? n lambda upon क्या था यहाँ पे? Small d. ओके, तो वैसे ही एंगुलर पोजीशन डिफ्रैक्शन के लिए क्या था? थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन क्या था? स्मॉल a. ओके, नाउ ये एंगुलर पोजीशन के फॉर्मूला, ये जो n लिखा हुआ है ना, ये nth ब्राइट बैंड के लिए, nth ब्राइट बैंड, nth डार्क बैंड, ये n उसको सिग्निफाई कर रहा है. ये n जो है वो तुम्हारा ब्राइट बैंड सिग्निफाई कर रहा है. उसी टेबल में नीचे आओगे तो n माइनस हाफ लिखा हुआ है. तो ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंबल को है ना थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख रहा है. ठीक है, तो प्लीज नोटिस दैट ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है. ये n है, दिस सिग्निफाइज द ब्राइट बैंड. विच ब्राइट बैंड? 10th ब्राइट बैंड, 12th ब्राइट बैंड, वो. और ये n क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट सिग्निफाइज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. दोनों में फर्क है, समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. सिर्फ मैं एक फ्रिंज की बात कर रहा हूँ तो मैं n लिखता ही नहीं ना. मैं तो सिर्फ एक फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूँ, उसके एंगुलर पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, हमने फ्रिंज की बात की है. ठीक है, तो n कंसीडर ही नहीं करेंगे बिकॉज वो फ्रिंज विड्थ हो गया. ठीक है, तो थीटा की बात कर रहे हैं. तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी. सो व्हाट इज थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा? So what does theta 2 upon theta 1 is equal to lambda 2 या फिर lambda dash upon lambda. Why lambda dash लिखा है? Because ये medium था. Theta 2 was in a medium, theta 1 was in not in a medium. ठीक है, now what is the relation between them? What is the relation between these two? Tell me. Lambda dash और lambda के बीच में क्या रिलेशन आया था? What is refractive index equal to? What is refractive index? Lambda upon Lambda dash. So what does lambda dash becomes? तो lambda dash के बदले क्या आएगा? lambda by n. lambda by n. तो lambda dash के बदले lambda by n आया, पर नीचे ऑलरेडी lambda है अपॉन थीटा. तो मैंने lambda dash हटा दिया, lambda dash के बदले lambda upon n लिखा, ये कैंसिल हो गया, 1 upon n. तो व्हाट इज थीटा 2 इक्वल टू? थीटा 1 ऊपर आएगा. थीटा 1 कितना है? 0.2 और n का वैल्यू कितना है?
1.33. So this value is 0.2 upon 1.33. Okay. Now let's calculate this 0.2 upon 1.33. Decimals निकाल देते. So this is one place, this is two place. दोनों का एक प्लेस डेसिमल तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक प्लेस डेसिमल है, उसके कारण ऊपर 0 आएगा, यानी 20 upon 133. ओके. नाउ डू दैट डिविजन प्लीज. सिंस मैंने डिग्री को डिग्री ही रखा है तो आंसर में भी डिग्री ही आएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो फर्दर कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर सकते हो. 24th sum. Read this question, 24th question. A star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom unit. So wavelength is known 5000 angstrom unit. Determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter 200 inch. So ये telescope वाला sum है. So if you remember the formula for telescope वाले sum के लिए wavelength is known as 5000 angstrom unit. Further, diameter is known 200 inch. Okay. Okay. Now, question is to determine the limit of resolution. यानी theta find out करना है. So, what was the formula for theta? What is theta equal to? 1.22 lambda by d. capital D. Theta is equal to 1.22 lambda upon capital D. This is theta. अपने को theta ही find out करना है. Limit of resolution. Resolving power नहीं ढूंढना है. Resolving power was a reciprocal of limit of resolution. Okay. Let's put up the values. This is 1.22. Lambda का value क्या आएगा? 5000 into 10 raised to minus 10. इसको अभी conversion करना पड़ेगा. Because हम लोग थीटा ढूंढ रहे हैं, जो अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो रेडियन में आएगा, या मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ. पर अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व करा तो रेडियन में आएगा. लास्ट टाइम मैंने रेडियन कैलकुलेशन क्यों नहीं यूज किया? ये थीटा जब अकेला रहता है तो वो रेडियन में ही रहता है. ठीक है. ओके. नाउ 1.22 है, 5000 into 10 raised to minus 10 कन्वर्जन किया. नाउ दिस इज 200 इंच. नाउ इंच टू मीटर का कन्वर्जन याद रखो 2.53 मीटर. ठीक है. 2.54 मीटर सीधा मल्टीप्लाई बाय 2.54 करना है. ठीक है. सेंटीमीटर. नाउ इंच का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल तुमने रूलर देखा रहेगा तो तुम्हारा इंच अप्रोक्सीमेटली इतना आता है और सेंटीमीटर इतना रहता है. ठीक है. तो 1 इंच इज 2.54 अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर. तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो. 10 raised to minus 2. तो यहाँ पे डिविजन होएगा. This is 200 2.54 into 10 raised to minus 2. ये जीरो सीधा कैंसिल हो गया. दोनों टू प्लेसेस बिफोर डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 2 50. ये 2 भी कैंसिल करते 25 अपॉन 254 into 10 raised to minus 2 ऊपर गया तो प्लस 2 हो गया 10 raised to minus 8. ठीक है. अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है ना तो ये 250 25 और 254 ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये भी 25 और ये 250 है. 25 और 250 कैंसिल करोगे तो नीचे 10 बचेगा. 10 यानी 12.2 आएगा. ठीक है. तुम्हारा आंसर चेक करना. 12.2 आएगा. क्या आंसर दिया है? 1.2 into 10. The slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of light passing through the slits. What is the angular separation in radians between the central maxima and the adjacent maxima? What is the distance between these maxima on the screen 50 centimeter from the slits? Okay, so there are a few questions over there. First question, सबसे पहला पार्ट क्या देके रखा है? Yes, in a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength. Can you tell me क्या है?